Hi everyone. Today we are going to do economic reform since 1991 and we have already covered Indian economy on the eve of independence and I've told you कि 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली थी and 1947 में हम बहुत ही एक्सप्लॉइटेड हाल में छूटे थे and उसके बाद 1950 तक हमें फिगर आउट करने में ही टाइम लगा असेसमेंट करने में कि हमारी इकोनॉमी का हाल एक्चुअली है कैसा एंड देन 1950 से लेके 1990 तक काफी हिट एंड ट्रायल्स हुए, प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया, 7 प्लान्स लॉन्च हुए तब तक एंड बहुत सारे सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स हुए, अलग अलग तरह की इंप्रूवमेंट्स हुई, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से हमें 1991 में रिफॉर्म लाने पड़े एंड पोस्ट 1991 से लेके आज तक करंटली क्या हाल है, क्या चल रहा है, हम वो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले देख लेते हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा है। After 40 years of planned development, India has been able to achieve strong industrial base and became self-sufficient in production of food grains. That's what we've studied in the previous chapter. Nevertheless, a major segment of the population continues to depend on agriculture for its livelihood. In 1991, a crisis 1991 में क्राइसिस हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। मैं आपको बीओपी चैप्टर पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, वो पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा चुकी हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्रिएट करा चुकी हूँ आपके साथ, क्रेडिट डेबिट सब करा चुकी हूँ। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड फ्रॉम वेयर टू डू इट एंड यू स्टिल डोंट नो what is BOP, I'll link that chapter towards the end of this video. So you go and watch that chapter and then come back to just figure out what exactly is balance of payment. Okay, today we are not going to understand that because I've already explained it. आज हम ये chapter कर रहे हैं। This unit is an appraisal of reform process and its implication for India. So it's liberalization, privatization, and globalization, which was an appraisal in the reform system, which is why it is called an appraisal. Okay. So let's quickly start the chapter. There is a consensus in the world today that economic development is not all and GDP is not necessarily a measure of progress of the society because and ये KR नारायणन ने बोला है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इन्होंने बोला है कि जीडीपी ग्रो कर रहा हो सकता है बट सोसाइटी फिर भी प्रोग्रेस नहीं कर रही हो सकती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप सिर्फ जीडीपी को नहीं मेजर कर सकते। अगर आपको नेशनल इनकम चैप्टर याद है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे भी समवेयर और दी अदर वो जीडीपी एंड वेलफेयर को लेके बात करते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ना डजंट रिफ्लेक्ट ऑलवेज दैट people are getting the welfare, I mean the society welfare which is happening, right? So let's read the introduction. You have studied in the previous chapter that since independence of India followed the mixed economy framework by, okay, I'll just change the color into more brighter color sort of so that you can easily assess। ग्रीन थोड़ा खो जाता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम था हमने जो अडॉप्ट करा था, ये चीज हमें पता लग गई है। बाय कंबाइनिंग एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड दोज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दोनों के बेनिफिट हमने लिए थे बिकॉज एज यू नो कि नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग फुल एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, बट हमारे में सोशलिज्म भी बहुत ज्यादा हो जाता कि हर चीज सरकार भी नहीं कंट्रोल कर सकती थी, विच इज वाई वी अडॉप्टेड मिक्स ऑफ बोथ। And some scholars argue that over the years, the policy resulted in establishment of variety of rules and laws, which were aimed at controlling and regulating economy, ended up instead in hampering the process of growth and development. Okay, so others state that India, which started its developmental path from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings and developed a diversified industrial sector. So ये arguments तो चलती रहती हैं, ये growth, these arguments will always continue. They are not going to stop, right? So in 1991, इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया को 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर के देशों से जब हम उधार लेते हैं उसको हम एक्सटर्नल डेट कहते हैं। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। सो जो भी बोरोइंग हुई थी अब्रॉड से, सरकार उसका रीपेमेंट उसको चुकता नहीं कर पा रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी मैंने आपको बीओपी चैप्टर में पढ़ाया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा एक तरीके से खजाना है जहाँ पे सारी ही फॉरेन करेंसीज उस खजाने में रखी हुई है। सो वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है विच वी जनरली मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स ड्रॉप्ड टू द लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट तक के लिए भी सफिशिएंट नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रह ही नहीं गया था पैसा कि हम कुछ इंपोर्ट कर पाए। हम बुरे हाल में हो गए थे, ऊपर से हम उधार पे उधार लिए जा रहे थे दूसरे देशों से। The crisis was further compounded by rising prices of essential good, और ऐसे में
दिक्कत तब होती है जब एसेंशियल गुड्स के भी प्राइसेस बढ़ने लग जाए, तब आप कहाँ जाओगे? ऑल दीज लेट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ policy measures which change the direction of our developmental strategies. In this chapter, we will look at the background of the crisis, measures that the government has adopted, and their impact on various sectors of the economy. So let's read the background. Crisis hua kaise? The origin of financial crisis can be traced from the inefficient management of Indian economy in 1980s. So हम हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, आपको पता है 1950 से लेके 1990 तक के बीच में 7 5 year प्लान हुए हैं, बहुत हिट एंड ट्रायल चल रहे थे। लेकिन दिक्कत शुरू ही 1980 के आसपास। We know that for implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources such as taxation. So सरकार कोई भी बेनिफिट देने के लिए पॉलिसी में जो पैसा जनरेट करती है वो कहीं ना कहीं आता है टैक्सेस से, टैक्सेशन से, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज अगर सरकार रन कर रही है तो ऑब्वियसली उसके कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं, वहां वो पैसा सरकार का है। When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit. अगर सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया है और सरकार की इनकम इतनी पूरी नहीं पड़ रही, तो सरकार किसी से बोरो करेगी। ठीक है, डेफिसिट आएगा, सरकार का खर्चा ज्यादा है, डेफिसिट होगा तो सरकार बोरो करेगी बैंक से, या ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री and from international financial institutions. So when we import goods like petroleum, we pay in dollars विच वी अर्न फ्रॉम आर एक्सपोर्ट्स। हम किसी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, हम कुछ बेच रहे हैं, हमारे बेचने के बदले में वो हमें डॉलर में अगर पे कर रहे हैं, वही डॉलर हम यूज करते हैं वहां से पेट्रोलियम खरीदने के लिए, कोई भी एसेंशियल कमोडिटी खरीदने के लिए। डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट challenges like unemployment, poverty, and population explosion. The continued spending on development programs of the government did not generate additional revenue. Continuously सरकार खर्चा करती गई लेकिन इस चीज ने रेवेन्यू जनरेट नहीं करा। Moreover, the government was not able to generate sufficiently फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। टैक्सेशन से भी सरकार अच्छे से पैसा जनरेट नहीं कर पा रही थी। when the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as social sector and defense, there was a need to utilize the rest of the revenue in highly efficient manner. The income from the public sector undertaking was also not very high to meet the growing expenditure. At times our foreign exchange तो at times of foreign exchange borrowed from other countries and international financial institution। तो कैसे बोरो हुआ? बोरो करा जा रहा था अदर कंट्री से एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, एंड वो कहाँ खर्चा हो रहा था? कंजम्पशन नीड्स पे। मतलब आप बोरो कर रहे हो किसी इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट तो करो जो रिटर्न लाए, पर नहीं, कंजम्पशन नीड्स पे हो रहा था तो कभी आपको रिटर्न देगा ही नहीं। नाइदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच प्रोलिफरेट सॉरी प्रोलिफ प्रोफ्लिगेट सॉरी ओके, सो कोई अटेम्प्ट ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो स्पेंडिंग को रोका जाए जो बेकार की स्पेंडिंग है इन अ वे। सो आप जब प्रोफ्लिगेट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो बेकार के खर्चे हैं, ठीक है, जो इतने नेसेसरी नहीं है। नॉट सफिशिएंट अटेंशन वाज गिवन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर ग्रोइंग इंपोर्ट्स। Okay, so in the late 1980s, the government expenditure began to exceed its revenue. Expenditure began होने लगा लेट 80s में रेवेन्यू से। एंड अब क्या हुआ कि इतने मार्जिन हो गए कि एक्सपेंडिचर को आपको मीट करना पड़ेगा बोरोइंग से, लेकिन अगर आप बोरोइंग भी करोगे तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। एंड प्राइजेस ऐसे में जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस हैं वो बहुत शार्पली इंक्रीज होने लग गए। imports grow होने लग गए at a very high rate without matching the growth of exports। import बहुत बढ़ गए, उतनी ग्रोथ आपके एक्सपोर्ट्स में नहीं आ रही थी जितनी आप इंपोर्ट में करने लग गए। ये सारी ही चीजों की वजह से आपका जो रिजर्व है, एक्सचेंज रिजर्व है, वो डिक्लाइन होने लग गया। ऐसे लेवल पे आ गया कि सिर्फ 2 हफ्ते का ही बचा था फॉरेन एक्सचेंज का खजाना, सिर्फ 2 हफ्ते की खरीदारी लायक ही बचा था, उससे ज्यादा नहीं बचा था। There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needed to be paid to international lenders. Also, no country or international funder was willing to lend to India. Okay, India approached the international bank. So India ने अप्रोच करा, भाई अब हम परेशान हो गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। वो होता है ना कि हो गया, बोरो कर लिया, लोगों से कर लिया, कंट्री से कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा, हर तरफ से मार पड़ रही है। अब हम गए इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी के पास, जो कि पॉपुलरली अब जाना जाता है एज वर्ल्ड बैंक, एंड हम गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हम किस किस के पास गए थे? हम वर्ल्ड बैंक के पास गए थे, जो कि कैसे जाना जाता है, आईबीआरडी भी जाना जाता है, एंड हम आईएमएफ के पास गए थे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट गई इन दोनों के पास, वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास, और रिसीव करा $7 बिलियन का लोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने का लोन था? $7 बिलियन का लोन मिला था। ठीक है, टू मैनेज क्राइसिस फॉर अवेलिंग दी लोन। लेकिन लोन अवेल करने के लिए कंडीशंस थी। ये इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्ट कर रही थी इंडिया को कि वो लिबरलाइज हो, वो थोड़ा ओपन हो, क्योंकि आपको याद होगा इन द प्रीवियस चैप्टर हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे थे। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे, सो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करो, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करो, कोई कंपटीशन ना हो। तो इन्होंने बोला हम 7 बिलियन लोन देंगे आपको, $7 बिलियन, लेकिन उसके लिए आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेंगे कुछ चीजें। ऐसा नहीं कि सारा कुछ पब्लिक सेक्टर ही कंट्रोल करता रहेगा। रिड्यूस करो, सरकार का रोल बहुत ज्यादा है कि हर कंपनी को भी खुलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आपसे परमिशन और लाइसेंस राज होता है। आपने देखा था परमिट लाइसेंस राज में बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। इंडिया अग्रीड टू दी कंडीशनैलिटीज ऑफ द, इंडिया के पास कोई चारा था? ठीक, मतलब अब जो पैसे दे दे, मतलब वो होता है ना यार, पैसे दे दे, पैसे नहीं है, अब तू जो बोलेगा कर लेंगे, वही वाला हाल है। इंडिया ने कहा वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, यार तुम लोन दे दो, इस वक्त चुकता करो, तुम जो बोलोगे करेंगे। वही हुआ था, एंड इस वजह से इंडिया ने अनाउंस कर दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी। एक एनईपी अनाउंस हुई थी कब? 1991 में, और एक एनईपी दोबारा भी कब अनाउंस हुई है? एनईपी आपको देखना है, एनईपी अनाउंस हुई 2020 में। ठीक है, एनईपी 2020 भी सुनाई देता है आपको, राइट? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जब 5 ईयर प्लानिंग भी हुई थी, तो वो लॉन्ग टर्म विजन 20 ईयर्स के हिसाब से होती थी। तो अगर एनईपी आपने 1991 में निकाली थी, तो ऑब्वियसली पोस्ट 20 ईयर्स यू नीड टू रिफ्लेक्ट की आर दोस पॉलिसी करेक्ट, आर देयर एनी थिंग्स व्हिच नीड टू बी चेंज एज पर द चेंजिंग डायनेमिक्स, क्योंकि वर्ल्ड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर वर्ल्ड इतना शार्पली इंक्रीज हो रहा है, तो हमको भी उससे पेस बनाना पड़ेगा ना पॉलिसीज को। पॉलिसीज आपकी कब की बनी हुई हैं? उस टाइम जहाँ आप ये नहीं सोच पाते थे कि हर कोई फ्लाइट में होगा, चैट जीपीटी तो भूल ही जाओ, जहां आप ये नहीं सोच पाते थे, मतलब लोगों को फोन भी 90s के एरा में नहीं होते थे इतना, और आज छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो वो तो कोडिंग, ब्रेन में उनकी वायरिंग ही ऐसी है कि फोन तो आपका पार्ट है लाइफ का, राइट? सो लॉट ऑफ डायनेमिक्स हैव चेंज्ड, एंड यू नीड टू चेंज द पॉलिसीज। अभी के लिए इंडिया ने बोला ठीक है, एनईपी अनाउंस कर रहे हैं। द एनईपी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इस एनईपी में, और जरूरत भी थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड थी और बहुत सारी चीजें ऐसे क्लोज्ड ऑफ थी। ठीक है, द थ्रस्ट ऑफ पॉलिसीज वर टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर competitive environment in the economy and removing barriers to entry and growth of the firms. This set of policies can broadly be classified into two groups: the stabilization measures and the structural reform measures. तो वो कह रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर हुए हैं, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। सबसे पहला होगा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, की जो हमने कुछ मेजर्स लिए स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, एंड कुछ लिए स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये थोड़े लॉन्ग रन होंगे। और स्टेबलाइज करना होता है इकोनॉमी के इमीडिएटली, कि यार मतलब हद हो गई, हम एक्सटर्नल डेट में, हम उधारी में आ गए हैं, हमारे पास 2 हफ्ते का एक्सचेंज रिजर्व बचा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, हम इम्पोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट हो गए, तो इमीडिएटली आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसे मेजर लेने पड़ते हैं कि अभी पहले शांत हो, स्टेबलाइज हो, उसके बाद जैसे अगर किसी को कोई पता चलता है कुछ, तो वो इमीडिएटली पैनिक होते हैं, तो आप उनको स्ट्रक्चरल मेजर नहीं बताने लगते। यार तू डाइटिंग, अगर आप सपोजिटली आपको कोई बीमारी पता चली आपको है, आप बहुत पैनिक हो रहे हो क्योंकि आपको अभी अभी पता लगी है, तो अभी अगर मैं आपको ज्ञान देने आऊं, तुम अपनी हेल्थ में ये करो ये करो, आप कहोगे यार पहले अभी बता, शांत कर मुझे, मतलब आप कहोगे जा, ज्ञान नहीं चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इमीडिएटली। अगर हाल खराब है तो पहले आप उस बंदे को शांत करोगे, उसको स्टेबलाइज करोगे कि यार तू शांत हो, तू बैठ, तू स्टेबल हो। जब वो स्टेबल है, जब वो सुनने समझने के हाल में है, तब आप उसे लॉन्ग रन के सोल्यूशंस बताओगे, राइट? तो यही स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल मेजर में क्लासिफाई हुआ। तो क्या क्या चीजें थी दोनों में, रुको देख लेते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट
term measures. Short term measure होता है intended to correct some of the weakness that have developed in balance of payment and to bring inflation under control. मैंने कहा ना ये immediate क्या था, prices बढ़े हुए थे बहुत ज्यादा and balance of payment नहीं था, तो वो पहले stabilize करा. In simple word, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserve and keep the rising prices under control. On the other hand, अब structural reform policies क्या है, वो long term measure थे. उन्होंने एम करा इम्प्रूव करने पे एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल competitiveness by removing rigidities in various segments of Indian economy. The government initiated a variety of policies. कौन सी variety of policies initiate की सरकार ने? ठीक है, it initiated variety of policies which fall under the three heads. Structural changes कैसे आए? Major changes, liberalization, privatization, globalization, LPG. हम स्टार्ट कर रहे हैं लिबरलाइजेशन से. एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, रूल्स एंड लॉज हैव बीन एम्ड एट रेगुलेट लिबरलाइजेशन. लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? टिपिकल मीनिंग क्या होता है? तो टिपिकल मीनिंग इज, द लिटरल मीनिंग इज दैट लिबरलाइज करना, आजाद छोड़ देना, थोड़ा रेगुलेशन, रूल, बंधनों से आजादी, लिबरल होना, राइट. सो ये लिबरलाइजेशन है, बंधनों से आजादी. अब बंधन कौन से हैं यहाँ पे? पॉइंटेड आउट बिगिनिंग में कि रूल्स, लॉ, रेगुलेशन बहुत ज्यादा थी. सरकार, बंधन कौन सा है? सोच के देखो, परमिट, लाइसेंस, राज. हर किसी को आके अपनी कंपनी में अगर मुझे एक्सपेंशन भी करनी है तो भी मुझे लाइसेंस लेना है जाके. मुझे कोई नई चीज खोलनी है तो भी मुझे लाइसेंस लेना है जाके. प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की कितनी इंटरफेरेंस है, सब कुछ पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा है. मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ये रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको हटाने की रिक्वायरमेंट थी. Liberalization was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. Though few liberalization measures were introduced in 80s in the area of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, ये सारी कुछ चीजें 1980 से शुरू हो गई थी. ठीक है. इन 1991 मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंट्रोड्यूस हुई वो. लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट एरियाज सच एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, foreign exchange market and trade and investment sector which received greater attention in and after 1991. ठीक है, क्या हुआ था? सबसे पहले डीरेगुलाइजेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो हम बात कर रहे हैं बार बार, लाइसेंस, परमिट, राज, परमिट, लाइसेंस, राज. सो डीरेगुलाइजेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का. इन इंडिया रेगुलेटरी mechanism were enforced in various ways. Industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from the government officials to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that could be produced. तो ये चीज हटी. फिर private sector was not allowed in many industries. ये restriction थी. Some goods could be produced only in small scale industries. Controls on price fixation and distribution of selected industrial products. ठीक है, ये सारी ही चीजें थी. तो अब क्या हुआ? अब ये सारी ही चीजों से द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मेनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी गई फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स. बस कुछ में छोड़ दी गई, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, हजार्डस केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. कुछ ऐसे सेक्टर है क्रूशल जहाँ पे हमें अभी भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सोचेगी. वरना तो हर प्राइवेट प्लेयर को पता है कि अगर अल्कोहल इंडस्ट्री में उसका प्रॉफिट ज्यादा है तो हर कोई वही खोलने लगेगा. बट सरकार को पता है कि कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि सरकार को सोसाइटी का भी देखना है. विच इज वाई इन सेक्टर्स पे अभी भी कंट्रोल रहा गवर्नमेंट का. ठीक है. द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन. ठीक है. एंड सम एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट. तो ये ही एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट ही रह गया था गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक सेक्टर के हाथ में. Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved in most of the industries. The market has been allowed to determine the prices. ठीक है, मार्केट प्राइसेस पे छोड़ दिया गया. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म देख लेते हैं. फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन हो गया, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आता है. क्या रिफॉर्म हुए थे? द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. Okay, Reserve Bank of India. You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulation of RBI. The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves, fixes interest rate, nature, and nature of lending to various sectors, etc. One of the major aims of financial sector reform is to रिड्यूस करना है रोल आरबीआई का. आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाना है. ठीक है. आरबीआई अभी रेगुलेटर है, मैं ये रेगुलेट कर रहा हूँ, वो अरे रेगुलेटर नहीं चाहिए हमें, वो तो वॉचमैन भी कर लेगा.
ये थिंकिंग है, हमें फैसिलिटेटर चाहिए जो हेल्प करे, जो फैसिलिटेट करे, ठीक है। सो ये एक एम था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का कि आरबीआई को मियर रेगुलेटर से हटा के, मतलब नॉट हटा के बट खाली रेगुलेटर ना बने, वो आपको फैसिलिटेट भी करे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल sector may be allowed to take decision on many matters without consulting the RBI. The reform policies led to the establishment of private sector banks. Private sector banks आए, ठीक है, इंडिया में फॉरेन सेक्टर बैंक्स आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक was raised अब around 74% पे raised हो गई. Then those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches and without the approval of RBI and rationalize their existing branches network. So though banks have been given permission to generate the resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holder and the nation. ठीक है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ये अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी परमिट करे गए कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या टैक्स रिफॉर्म हुआ? टैक्स Tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditure policy, which are collectively known as fiscal policy. So if somebody asks me what is fiscal policy, they've been told you what is fiscal policy. Okay, there are two type of taxes, direct and indirect taxes. Direct tax कौन से होते हैं? जो consist करते हैं tax on income of individual, ठीक है, as well as profit of business enterprises. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on individual incomes, as it was felt that high rate of income tax were an important reason for tax evasion. So it is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. So the rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. Corporation tax बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसको gradually reduce किया गया. Effort have also been made to reform indirect taxes, कि indirect taxes को भी reform किया जाए या reform आया जाए, ठीक है। Taxes levied on commodities. So there were taxes levied on commodities in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities. In the year 2016, Indian Constitution was amended to empower state governments and union government to come out with laws to impose goods and services tax. This has led to introduction of GST in India. Okay, GST आया इंडिया में. This is expected to generate additional revenue for the government. अब additional revenue आएगा सरकार के लिए, reduce tax evasion and create one nation, one tax and one market. Another component of reform in this area is simplification. In order to encourage better compliance on part of taxpayers, many procedures have been simplified and the rate also substantially lowered. ठीक है, तो ये आपके थे tax reforms. बढ़ते हैं आगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की तरफ. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 1991 में एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि एकदम से हो गया था. रुपी को डीवैल्यू किया गया था. अब डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है अगर ये जानना है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर देख कर आओ. आई थिंक मैं आई बटन में भी कहीं लिंक कर दूंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में कराया, वहां पे जाके देख कर आओ कि क्या डिफरेंस है डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में. बट हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया था क्योंकि सरकार ने अपने आप उसको करा था ये, ठीक है. एंड दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. It also set the tone to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control. Now, more often than not, market determine exchange rate based on demand and supply. यानी अब अगर होता है तो depreciation या appreciation होता है, अब devalue नहीं होता क्योंकि सरकार के चंगुल से निकाल दिया गया है, ठीक है. यही डिफरेंस है. देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म क्या हुए थे? ट्रेड सेक्टर में पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या थे? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट regime was initiated
to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy. So the aim was also to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies. ठीक है, ये aim था. Then, in order to protect the domestic industries, India was following a regime of quantitative restrictions. हमने पढ़ा था ना, कोटा, टैरिफ, ये फॉलो कर रही थी इंडिया. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कर रही थी इंपोर्ट पे कि इतनी क्वांटिटी ही आ सकती है, लिमिट्स लगा रही थी. This was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs very high. These policies reduced efficiency and competitiveness, which led to slow growth of manufacturing sector. स्लो ग्रोथ हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि इन पॉलिसीज की वजह से कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस लेवल का ग्रो नहीं कर पाया. द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स aimed at dismantling quantitative restriction. खत्म करो पहले तो ये कोटा सिस्टम. देन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. फिर दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन. रिडक्शन किस चीज में हुआ, टैरिफ रेट का, कि टैक्स रेट, जो टैरिफ रेट बढ़ाया हुआ है अपने इंपोर्ट पे, उसको कम करो. रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स, कि हर चीज में लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग अबॉलिश की गई. Expected, except in case of hazardous and environmentally sensitive industries, which is okay. Quantitative restriction on imports of manufactured consumer goods and agricultural products was fully removed from April 2001. ठीक है, this is very important. This can come into any question. Export duties जो होती हैं उनको रिमूव किया गया टू इंक्रीज द competitiveness position of Indian goods in international market. कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी खाने बैठ गए तो फिर बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा. हम चाहते हैं कि इंडिया के गुड्स बाहर पहुंचे और competitiveness में जीते. ठीक है, so that was the case. Then let's come to privatization. What is privatization? Privatization implies shedding of ownership or management of government owned enterprise. गवर्नमेंट ने जिस भी एंटरप्राइज को ओन करा हुआ है, जब वो उसकी ओनरशिप छोड़ देती है और बोलती है प्राइवेट फर्म आके ले ले, उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज. दो तरीके होते हैं जब गवर्नमेंट, सरकारी कंपनी जो है वो कन्वर्ट की जाती है. कैसे? बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो दो तरीके होते हैं. क्या होते हैं? अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज करना है, तो दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है कि खुद ही ओनरशिप जो है अपनी वो वापस ले लो. ठीक है. दूसरा है कि बेच दो, कंपनी बेच दो. गवर्नमेंट कंपनी है वो बेच दो. जब हम गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट की असेट है, जब इसको बेचेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, रुपी जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और किसी प्राइवेट प्लेयर के पास ये कंपनी आएगी. इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार. ठीक है. तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी of PSEs to public is known as disinvestment. The purpose of the sale, according to the government, was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of PSUs. ठीक है. अब यहाँ पे बॉक्स है जहां नवरत्ना के बारे में बोल रहा है, पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसीज. लेट्स रीड इट. I'll just change the color. I'm not liking it anymore. I'll make it equivalent to my top purple. Okay, so you must have read in your childhood about famous Navratnas or nine jewels. Navratna कहते हैं ना, राजाओं के पास रत्न होते थे, तो नवरत्न. In the imperial court of King Vikramaditya, who were eminent persons of excellence in the field of art, literature and knowledge. तो आपने नवरत्न ऐसे सुना है, पर कंपनीज के मामले में नवरत्न क्या हुआ? In order to improve efficiency, infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalized global world environment, the government identifies public sector enterprises and declares them as Maharatna, Navratna and Miniratna. उनकी परफॉर्मेंस एंड उनकी इफेक्टिवनेस को और बेटर करने के लिए सरकार उनको क्लासिफाई करती है महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनीरत्ना में. ठीक है. They were given greater managerial operational autonomy in taking various decisions to run company efficiently and thus increase their profits. So greater operational, financial and managerial autonomy has been granted to profit-making enterprises referred to as Mini Ratna. ठीक है. The central public sector enterprises are designed with different status. A few example of public enterprises with their status are as follows.
जो महारत्ना होते हैं महारत्ना में कौन कौन है? आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्नास कौन से हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एंड मिनी रत्ना भारत संचार निगम लिमिटेड, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें ना आपको याद रखनी है, क्योंकि ये मैच द कॉलम अगर उनको डिफिकल्ट बनाना है तो उसमें वो पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है। Many of these profitable PSCs, public sector enterprises, were originally formed during 1950s initially. 50s and 60s में बनी थी, when self-reliance was an important element of the public policy. They were set up with the intention of providing infrastructure and direct employment to public so that the quality end product reaches the masses at a nominal cost, and the companies themselves were made accountable to all stakeholders. ठीक है। So the granting of status resulted in better performance of these companies. Scholars allege that instead of facilitating public enterprises in their expansion and enabling them to become global players, the government partly privatized them and through disinvestment. So basically, off late क्या हो रहा है अभी? The government has decided to retain them in the public sector and enable them to expand themselves in the global markets and raise the resources by themselves from financial markets. ठीक है, so that is the scenario. Okay, let's read it ahead. The government envisaged that privatization could provide strong impetus for to the inflow of FDI. प्राइवेटाइजेशन होगी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आप दोगे, कंपनी बेचोगे, तो हो सकता है बाहर से आके बाहर की कंपनी भी कोई करना चाहे, तो वो ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको फ्लो होगा. The government has also made attempts to improve efficiency of public sector undertakings by giving them autonomy in taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status as Maharatna, Navratna and Mini Ratna. हमने वो बॉक्स ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे. एल हो गया, पी हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया. लेट्स रीड अबाउट ग्लोबलाइजेशन. ओके. Then, although globalization is generally understood to mean integration of our economy with the world economy, हर कोई बोलता है ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो रही है. ठीक है, पर ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. It is an outcome of set of various policies that aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration. Basically, हम वर्ल्ड को, कंट्रीज को एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं, हम इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं. क्योंकि अगर हर कंट्री बोलेगी कि हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं करना, तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन तो बचेगी नहीं. अगर हर कंट्री सिर्फ अपना सोचेगी, हम वर्ल्ड में सबको साथ चलना सिखा रहे हैं, राइट, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स and activities transcending economic, social and geographical boundaries. So globalization क्या attempt करता है? Globalization attempt करता है to establish the link in such a way that that the happenings in India can be influenced by events happening miles away. तो अगर यूएस में कुछ हो रहा है, अभी आजकल स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है, लोग नैस्डैक में क्या हो रहा है या बहुत सारी चीजें देखते हैं. तो बेसिकली बाहर क्या चल रहा है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कमला हैरिस होगी, या जब तक इलेक्शन चलते रहे तब तक बहुत चला कि इंडिया को ऐसे इम्पैक्ट होगा ऐसे, तो आपकी इकोनॉमी, या रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे बहुत केसेस होते हैं. सो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है. हमने ऐसे बना दिया है, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दिया है जहाँ पे माइल्स अभी भी कुछ हो रहा है ना, उसका असर आप पर आएगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस कंट्रीज की एक दूसरे पे है. नाउ आउटसोर्सिंग की बात कर लेते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. आउटसोर्सिंग में क्या होता है? कंपनी हायर करती है रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन दी कंट्री. लीगल एडवाइस हो गया, कंप्यूटर सर्विस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया. सपोजली फॉर एग्जाम्पल आप आज की डेट में देखोगे बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया में कंपनीज हैं जो रात रात भर काम करते हैं, मॉर्निंग नहीं करते, क्योंकि वो यूएस के टाइम जोन से इंटीग्रेटेड है. तो अब क्या होता है? आउटसोर्स करना है कि अगर कॉल सेंटर्स भी, आप यूएस में जब रात है यहाँ पर सुबह है, तो आप आउटसोर्स कर लो सर्विसेज उसी कंट्री में बैठे हुए, कि उन्होंने इंडिया में ही अपने ऑफिस बना दिए और सर्विसेज आउटसोर्स कर ली. ठीक है. तो as as a form of economic activity, outsourcing has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology. Many of the services, such as voice-based business processes, popularly known as BPO, आपने मैंने बोला ना, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस पॉपुलरली नोन एज बीपीओ, और कॉल सेंटर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, तो इन सब के लिए आउटसोर्सिंग बहुत होती है, राइट. सो
accounting, banking service, music recording, film editing, book transcription, clinical advice, or even teaching के लिए are being outsourced by the companies in developed countries to India. ठीक है? With the help of modern telecommunication links, including the internet, the text, the voice, the visual data, in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. Most multinational corporations and even small companies are outsourcing their services to India, where they can be availed at a cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy. A low wage rate and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post reform period. क्योंकि हमारे यहाँ लेबर ज्यादा है, बाहर की कंट्रीज में लेबर उतनी नहीं है, स्किल्ड ऐसा नहीं है, जितना स्किल रिक्वायर्ड है उसके लिए वो सीख लेता है और सस्ते में मिल रहा है। सबसे पहली बात रिसोर्स और सस्ते में है, तो चीप रिसोर्स है, इस वजह से सबके लिए इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन है जब भी आउटसोर्सिंग की बात आती है। ठीक है, ग्लोबल फुटप्रिंट का बॉक्स देख लेते हैं। Owing to globalization, you might find many Indian companies have expanded their wings to many other countries. For example, ONGC Videsh, a subsidiary of Indian public sector enterprise Oil and Natural Gas Corporation engaged in oil and gas exploration and production, has projects in 16 countries. Tata Steel, in private company established in 1907, ये हमने first chapter में पढ़ा था, is one of the top 10 global steel companies in the world, which has operations in 26 countries and sell its products in 50 countries. It employs nearly 50,000 persons in other countries. HCL Technology टॉप 5 आईटी कंपनीज में है। तो ये सारी कंपनीज आप देखोगे कि खाली इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इसके बाद 1995 में इसी की सक्सेसर के तौर पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। ठीक है, एंड जीएटीटी आया था 1948 में, 23 कंट्रीज थी इसमें। ठीक है, to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in international market for trading purpose. WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of the world resources. ठीक है, WTO अग्रीमेंट क्या करते हैं, कवर करते हैं ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। आपस में तो है ही, मल्टीलेटरल भी, बायलेटरल 2 लोगों में, मल्टीलेटरल बहुत लोगों में। ठीक है, through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all member countries. As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations, and safeguards, and advocating the interest of developed world. India has kept its commitments toward liberalization of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rates. Okay, so I hope this is clear. Then this is a table growth of GDP and major sectors. आपको year दर year दिखा रहा है कि कैसे growth चल रही है. So you can just pick it and analyze the table, look at it, and if you have any doubt, you can write it to me, and I'll definitely be happy to explain it to you. Okay. Okay, hold on. Let's see. Chapter, if we need to divide it in any of the further parts. Yeah, no such division is required. Let's finish it off. Okay. Some scholars question the usefulness of India being a member of WTO as a major volume of international trade occurs among developed nations. So कुछ लोग बोलते हैं, कुछ member nations की इंडिया है ही क्यों पार्ट WTO का, जबकि जो ट्रेड है मेजरली वो डेवलप्ड नेशंस के बीच होता है। वो ये भी कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज फाइल कंप्लेन ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज गिवन इन देयर कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड as they are forced to open their market for developed countries but are not allowed to access the market of developed countries. So उनको दिक्कत है कि हमारी मार्केट तो खोल दी डेवलप कंट्रीज के आने के लिए, बट डेवलप कंट्रीज ने अपनी मार्केट्स नहीं ओपन की हमारे जाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है। देन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, एक असेसमेंट देख लेते हैं। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज कंप्लीटेड 3 डिकेड्स, 30 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं, वेल एंड ट्रूली हो चुके हैं। सो अब तो 35 साल ही होने वाले हैं।
So the reform process has completed 3 decades since its introduction. Let us now look at the performance of the Indian economy during this period. In economics, the growth of an economy is measured by the gross domestic product. Look at the table 3.1. The post 1991 India witnessed a rapid growth in GDP on a continual basis of for 2 decades. ठीक है, 2 decades तक ग्रोथ रही. The growth of GDP इंक्रीज हुई 5.6% से लेके 8.2% तक 2007-12 में. रिफॉर्म्स के टाइम पे क्या हो रहा था? रिफॉर्म्स के टाइम पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ डिक्लाइन हुई. While industrial sector ने fluctuation report करी, the growth of the service sector has gone up, and this indicates that the GDP growth is mainly driven by the growth in the service sector. तो यानी service sector से आ रही है growth. During 2012 to 15, there has been a setback in the growth rate of different sectors witnessed post 1991. So while agriculture recorded high growth rate, इस साल में 2013-14 में ये सेक्टर ने विटनेस की नेगेटिव ग्रोथ रेट इन सब्सिक्वेंट ईयर, while the service sector continued to witness high level of growth, higher than the overall GDP growth in 2014-15. This sector witnessed the high growth rate of 9.8%. ठीक है, सो ये बेसिकली आपको परसेंटेज बता रहे हैं, जो आपको टेबल है उसका एनालिसिस बता रहे हैं. द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये क्या क्या हुआ है ओपनिंग से, ये देख लो. फॉर एफडीआई बढ़ गई है इकोनॉमी में. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं इकोनॉमी में. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोल रही हूँ बड़ी है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट आता है. दोनों ही इंक्रीज करी हैं. ठीक है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. आपको पता है कि 6 बिलियन से लेके 1991 में 6 से 7 बिलियन 6 बिलियन बचे थे, और उससे लेके आज 413 बिलियन हो चुके हैं 18-19 में. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. एक टाइम पे हम क्राइसिस में 2 हफ्ते के भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचे थे और लिटरली भीख मांग रहे थे जाके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, और आज हमारे पास इतना है कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स. Since 1991, India is seen as successful exporter of auto parts, pharmaceutical goods, engineering goods, IT, software and textile. Rising prices have also been kept under control. So ये सारे benefits हुए हैं. ठीक है, these are all the benefits. On the other hand, the reform process has been widely criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy, especially employment. Employment देखो अभी भी कम है. ठीक है, अभी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट काफी है. देन एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ग्रोथ नहीं है. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का थोड़ा सा है. अब बात करते हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की. दो द जीडीपी रेट हैज इंक्रीज्ड इन रिफॉर्म पीरियड, स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट. अगर जीडीपी बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ी है? यू विल, तो अब आपको फिर जॉबलेस ग्रोथ नहीं लगती देखने में? दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ होता है कि जब आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ रही लेकिन जीडीपी बढ़े जा रहा है. तो अगर लोग एम्प्लॉय नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे और जीडीपी बढ़ रहा है, यानी जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में. राइट. रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में उतना बेनिफिट नहीं दिया, एंड वेयर द ग्रोथ रेट हैज बीन डिसेलरेटिंग, सो ग्रोथ उतना एग्रीकल्चर में नहीं देखा गया. Since 1991, public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, road, market linkage, and research and extension, which played a crucial role in green revolution, has fallen. So agriculture sector ने उतना growth नहीं दिखाया है जितना दिखाना चाहिए था. ठीक है, वो बेसिकली यही बोल रहे हैं यहाँ पे. This sector has been experiencing number of policy changes such as reduction in import duties, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस. यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर माल नहीं बिका मार्केट में तो सरकार इतना प्राइस दे देगी, पर अब वो भी कम कर दिया, तो लो एमएसपी हो गया. ठीक है, एंड दीज हैव एडवर्सली अफेक्टेड इंडियन फार्मर्स एज दे नाउ फेस इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन. तो जो चीज हम पहले अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं चीजों ने इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट पे बहुत बुरा असर डाला. एंड ऐसा हुआ कि अभी फार्मर्स बहुत ही ज्यादा, फार्मर सुसाइड आप सुनते होंगे, so they are not being very happy. Moreover, because of export-oriented policy strategies in agriculture, there's been a shift from production for domestic market towards production for export market. हम प्रोड्यूस करते थे डोमेस्टिक मार्केट को केटर करने, आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, हम कैश क्रॉप पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि बाहर की कंट्री में फूड क्रॉप नहीं चाहिए इतनी जितनी कैश क्रॉप चाहिए. ठीक है, तो ये चीज थोड़ी गलत होती जा रही है. Then industry के रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ has been recorded a slowdown.
एंड दिस इज बिकॉज डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे चीप इम्पोर्ट हो गए एंड इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट हो गया। बेसिकली वो बोल रहा है कि सर्विस सेक्टर से ही आएगा अभी सारा ग्रोथ, वो यही बोलेगा आपको। ठीक है, बट स्टिल लेट्स रीड इट। In a globalized world, developing countries are compelled to open up their economies to a greater flow of goods and capital from developed countries and rendering their industries vulnerable to imported goods. Cheaper imports have thus replaced the demand for domestic goods. Domestic manufacturers are facing competition from imports. The infrastructure facilities include power supply and have remained inadequate. So ये सारी चीजें सारी कमियां हैं अभी तक. Then moreover, a developing country like India still does not have access to developed countries' markets because of high non-tariff barriers. For example, although all quota restriction on export of textiles and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restriction on import, क्योंकि हम इंडिया में ना सब्सिडी दे रहे हैं तो इंडिया वाले चीप बेच रहे हैं तो उनके गुड तो चलेंगे ही नहीं, इसलिए वो इंडिया की लोगों को आने ही नहीं देते उधर फील्ड में. डिसइन्वेस्टमेंट, एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फॉर पीएससी. डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है सरकार का. फॉर इंस्टेंस 1991 में टारगेट किया था कि 2500 करोड़ लाने हैं थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट. द गवर्नमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज 3000 करोड़ from the target, and in 2017-18 the target was about 1 lakh crore rupees and achievement was about 1 lakh, almost same. So critiques point out that the assets of PSCs have been undervalued and sold to private sector. This means that there has been substantial loss to the government. अगर सरकार ने अपनी कंपनी को अंडरवैल्यू किया और प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड करा है तो इसका मतलब लॉस इनकर करा है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू ज्यादा थी, आपने अंडरवैल्यू करा है. ठीक है, तो moreover the proceeds from disinvestment are used to offset shortage in government revenue rather than using it for development of PSCs and building social infrastructure. जो पैसा कुछ पार्ट बेच के आ रहा है, इक्विटी बेच के आ रहा है, वो आपको कंपनी की ग्रोथ में लगाना चाहिए, पर वो आप अपने बाकी खर्चे कवर करने में लगा देते हो, ग्रोथ में नहीं लगाते हो. Do you think selling a part of property of government companies is the best way to improve their efficiency? That's still doubtful. It is a best way. See, honestly, the answer would be it is a best way if that revenue that is being coming from this investment or selling part of the company is being invested in the growth of that company. But if that money is put to a consumption use or the use that is not going to benefit so much, then it is of no importance. Okay, reform and fiscal policies. Economic reforms have placed limit on growth of public expenditure, especially in social sectors. The tax reduction in reform period aimed at yielding larger revenue and curb tax evasion. ठीक है, तो क्या रिफॉर्म आ रहा है इधर कि बेसिकली लिमिट लाई गई पब्लिक एक्सपेंडिचर के ग्रोथ पे, यानी सरकार जो खर्चा किए जा रही है उसको बोला कि संभालो अपना खर्चा और फालतू की चीजों पे मत करो. टैक्स रिडक्शन रिफॉर्म पीरियड में जो एम था उसका वो था कि ज्यादा लार्जर रेवेन्यू यील्ड करे और टैक्स इवेजन कम हो जाए. ठीक है, क्योंकि अब टैक्स बढ़ा दोगे अगर टैक्स रेट तो लोग टैक्स चोरी करने लगेंगे, पर अगर टैक्स रेट लिमिट में वेल विद इन द लिमिट्स है तो ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे. ठीक है, एंड अब क्या हुआ, हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, पर इस चीज से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ. Also, the reform policies involving tariff reduction have curtailed the scope of raising revenue through custom duties. Now, in order to attract foreign investment, tax incentive are provided to foreign investors, which further reduce the scope of rising tax revenues. This has negative impact on developmental and welfare expenditures. कि foreign investment लाने के लिए भी companies को यहाँ पे लाने के लिए भी हम tax कम कर देते हैं, तो in a way ये problem है. Conclusion पे आ जाते हैं. The process of globalization through liberalization and privatization policies has produce positive as well as negative results both for India and other countries. Some scholars argue that the globalization should be seen as opportunity in terms of greater access to global markets, high technology, and increased possibility of large industries of developing countries to become important players in the international arena. ठीक है, सिलसिला ट्रेजेडी क्या है, पावर सेक्टर रिफॉर्म in many Indian states led to do away with the supply of electricity at subsidized rates and steep rise in power tariff. This has affected workers engaged in the small industry. Power loom or textile industry, Andhra Pradesh is an example. Since the wages of power loom workers are linked to the production of cloth, power cut means cut in wages of weavers who were already suffering from hike in tariff. A few years ago, this led to crisis in livelihood
of the weavers and 50 power loom workers committed suicide in small town like Sirsila in Andhra Pradesh. Okay, so I hope you understand where are they coming from. Now, this is conclusion only. On the contrary, critics argue that globalization एक strategy है, ठीक है, developed countries की expand करने की market अलग countries में, and according to them, it has compromised the welfare and identity of the people belonging to poor countries. Now, viewed from Indian context, some studies have stated that crisis that erupted in early 1990s was basically outcome था एक deep rooted inequality का Indian society में. Indian society में एक deep rooted inequality थी जिसकी वजह से वो crisis आया, and it initiated as a response to the crisis by government with externally advised policy package further aggravated the inequalities. Further, it has increased the income and quality of consumption of only high income groups, and the growth has been concentrated only in some selected areas in the service sector. So ये सारी चीजें ही वो आपको कंक्लूजन में ऑलमोस्ट सेम थिंग बोल रहे हैं जितना हम पढ़ चुके हैं. So guys, with that, we have come to an end towards this chapter, and this is the recap. You can read it. These are the questions. You can practice. Sometimes CBSE में direct question आ जाते हैं पीछे के, and हम करके नहीं गए होते. So it's better you read all the question, and even for your CVT prep, if you have any question, guys, you can let me know. And we've come to an end of this chapter. I really hope you liked it. Share your feedback. I truly appreciate the feedbacks. And with that, we have completed the NCRT course of macroeconomics and Indian economic development. Thank you so much for all the love, and keep sharing the feedbacks, keep pouring in the love, and a very happy new year to each and every one of you. I'll see you with another one in another year. Till then, take care and bye.